Assalamu alaikum. Bioinorganic chemistry, CHM 638. What is my part? Basically, the metals in bioinorganic environment, and we will study about the structure. Structure means the structure of the particular metalloprotein or a complex which is present in bioinorganic environment and then the function of that particular metalloprotein or complex of metal and its role in health mean in normal physiological function, and in pathological function, in pathological condition means diseases. तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री CHM 638 का. सो बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंसर्न विद द रोल ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी के अंदर हम इसे देख रहे हैं, बल्कि बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब ये है कि ह्यूमन बॉडी के अलावा भी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं हम उनमें भी मेटल का रोल देखेंगे. और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स स्टडी बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट. तो इसमें सिर्फ मेटल का रोल नहीं होता बल्कि नॉन मेटल का रोल भी होता है. लेकिन मोस्टली जो हम बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं CHM 638 में, दैट इज़ द रोल ऑफ metals, and a very little information will be provided on the role of non-metals. non-metals के ऊपर डिस्कशन बहुत कम होगा, ज़्यादातर डिस्कशन जो है वो metals के ऊपर होगा. It deals with the chemical reactivity of metal ions in biological environment. Okay, of course you know कि biological environment में जहाँ पर बहुत सारे fluids मौजूद हैं, बहुत सारे ligands मौजूद हैं, तो मेटल आयन डेफिनेटली रिएक्टिव होगा. ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मेटल आयन जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं वो जस्ट ऐसे पड़े हुए हैं जैसे कि किसी मतलब कि नॉन रिएक्टिव कंडीशन में जस्ट ये कि बस मौजूद हैं. ठीक है, दे आर कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग रिएक्शंस, दे आर कंटिन्यूसली बीइंग एक्टिव. सो bioinorganic chemistry deals with the chemical reactivity of metal ions in biological environments. The exploration and modeling the biological role like absorption, binding, transport, distribution, function, excretion. ये थोड़ा सा गलत लिखा है, ये एक्सर्शन नहीं है, ये एक्सक्रीशन है. ठीक है, ये आर पहले है और ई बाद में है, एक्सक्रीशन है. इसको मैं ठीक कर लेती हूँ. ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो है ये हम जब डिस्कस करेंगे तो ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स इसेंशियल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और टॉक्सिक भी हो सकते हैं. ठीक है, यानी जो हैवी मेटल्स को हम डिस्कस करते हैं. एज वेल एज the practical applications of these findings in pharmacy, agriculture, environment protection, etc. ये तो बहुत कम applications लिखी हैं. We have far more applications of bioinorganic chemistry. So basically bioinorganic chemistry deals with the exploration and modeling of biological role, absorption, binding, transport, distribution, function, excretion of inorganic elements, either essential or toxic, as well as the practical application of these findings in pharmacy, agriculture or environmental protection. Okay, so bioinorganic chemistry as a highly interdisciplinary research field.
Bioinorganic chemistry is not only just a one field. It is basically related to a lot of other research fields. So it is basically a discipline at the interface of inorganic chemistry and biology. But there are a lot of disciplines in biology which basically are related in bioinorganic chemistry, like as you can see here, this is a picture in which a relation between bioinorganic chemistry and other fields is described. And you can see here, let's start with inorganic chemistry. Okay, so what is bioinorganic chemistry? So first discipline, which is basically a main discipline of bioinorganic chemistry, is inorganic chemistry. And you know what is inorganic chemistry? Inorganic chemistry is basically the study of different elements other than carbon. So a lot of elements containing metals, non-metals, metalloids, etc., and all are studied in inorganic chemistry. So this you better know what is inorganic chemistry. What other fields are related? Number 2, biochemistry. And what is biochemistry? Basically biochemistry deals with proteins, carbohydrates, lipids and nucleic acid, and all these things are available in human body and in animal bodies also, and in plants also. So it is basically, biochemistry is basically the study of these types of molecules, because all of these are molecules: proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acid, all of these are molecules. So the study of these type of molecules in a biological environment is known as biochemistry. Number 3, microbiology. And you know what is microbiology? Microbiology is the study of microbes. Microbes are basically those living organisms which you cannot see through your eyes. And a very well known field, physics, which is basically study of matter, space, time, speed, distance, etc., etc. And toxicology. Toxicology क्या है? Toxicology is the study of toxins, study of poisons. ठीक है, poisons क्या होते हैं? जो कि harmful होते हैं. ठीक है, harmful किस लिहाज से? harmful हर लिहाज से, यानी कि जो बायोलॉजी या बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में भी हार्मफुल हो, जो एनवायरनमेंट में भी हार्मफुल हो, जो हर लिहाज से हार्मफुल हो. ठीक है, तो उसको हम टॉक्सिन कहेंगे. और टॉक्सिन अगर बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हो तो मोस्टली वो स्टडी आप टॉक्सिकोलॉजी में करते हैं, तो वो बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होती है. फार्माकोलॉजी. Pharmacology is basically study of pharmaceuticals. Pharmaceuticals means आसान अल्फाज में आप उसे medicines कह सकते हैं. ठीक है, and it is basically the study of these pharmaceuticals interaction with the body. ठीक है, what these medicines do with the body and what the body do with these pharmaceuticals. So this field is known as pharmacology. And last but not least field is physiology. And what is physiology? Physiology is basically the study of
life, all different type of life, all different type of living organism. So bioinorganic chemistry is the interdisciplinary discipline of the combination of all these fields. तो आप बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं और बहुत कुछ जानने वाले हैं, क्योंकि जब तक आप बायोलॉजी नहीं जानेंगे, आप कोई दूसरी फील्ड नहीं जान सकते जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे। और अपने आप को जानने के लिए जो है आपको बायोलॉजी का जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Understanding the roles that metallic and non-metallic elements play in biological systems is the goal of bioinorganic chemistry. There are two main fields of bioinorganic chemistry. Number one, investigations of inorganic elements in processes like nutrition, the toxicity of inorganic species, including the ways in which such toxicities are overcome both by natural systems and by human interventions, and of metal ion transport and storage in biology. So जो फर्स्ट टाइप है, यानी बेसिकली बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो टू मेन फील्ड्स पर में डिवाइड की जा सकती है इसकी स्टडी को. तो वन फील्ड जो पहली स्टडी है वो ये है जिसमें आप इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं कि इनका रोल क्या है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन, यानी कि न्यूट्रिशन जैसे कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पर ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अगर ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उन टॉक्सिसिटीज़ को कैसे रिमूव, कैसे ओवरकम किया जा सकता है. और वो ओवरकम अगर कुदरत ने कोई सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है, जिसे आपको पता है कि कुदरत ने ही बहुत सारे सिस्टम अल्लाह ताला ने हमको दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि जिससे कि बहुत सारी टॉक्सिसिटीज़ हमारी बॉडी में जो हैं वो खुद ब खुद ही ओवरकम हो जाती हैं, ठीक है. तो वो नेचुरल सिस्टम्स जो कि इन टॉक्सिसिटीज़ को ओवरकम करते हैं, और वो इंटरवेंशंस मतलब कि जो भी मेडिसिन्स हैं या जो भी मेडिसिन्स के अलावा भी हो सकते हैं, ठीक है, कि जो कि इन टॉक्सिसिटीज़ को ओवरकम करने के लिए यूज़ किया जा सके, उनकी स्टडी है. और सबसे बढ़कर बहुत ज़्यादा जो इसमें स्टडी किया जाता है वो मेटल आयन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज इन बायोलॉजी, ठीक है. क्योंकि मेटल आयन बॉडी में है तो बॉडी में मेटल आयन अकेले मेटल आयन के तौर पर सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि मेटल आयन बहुत रिएक्टिव होता है और इसकी रिएक्टिविटी को शेल्टर किया जाता है. और बॉडी में या बायोलॉजिकल सिस्टम में जो मेटल आयन होता है वो हमेशा एक शेल्टर फॉर्म में होता है. अब वो शेल्टर फॉर्म जो है वो उसके कोऑर्डिनेशन पार्टनर्स हैं. मेटल के साथ कुछ लिगेंड्स भी बाइंड हो सकते हैं, मेटल्स के साथ वाटर भी बाइंड हो सकता है, और मेटल्स के साथ प्रोटीन पूरी भी बाइंड हो सकती हैं in order to shelter the metal ion reactivity with the whole body. ठीक है, अब अगर मेटल आयन ने पूरी बॉडी में से किसी एक जगह पर रिएक्शन करना है, किसी एक जगह पर उसने स्टोर होना है, किसी एक जगह फिर उसने पूरी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट होना है, तो जाहिर सी बात है उसके जो चार्ज है मेटल आयन का, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, उसको जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको शेल्टर करना बहुत ज़रूरी है. और उसकी शेल्टरिंग हमेशा बॉडी में मौजूद या तो वाटर कर रहा होता है या बॉडी ही में मौजूद लिगेंड्स कर रहे होते हैं या बॉडी में मौजूद प्रोटीन्स कर रहे होते हैं, जिनको मेटालोप्रोटीन्स कहा जाता है. Hence all these types of studies are investigated in one field. तो एक तो ये स्टडी हो गई बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. Now what is other? The introduction of metals
ठीक है, अब मेटल्स का मतलब क्या है, मेटल कॉम्प्लेक्सेस इनटू बायोलॉजिकल सिस्टम्स एज प्रोब्स एंड ड्रग्स। ठीक है, अब अगर मेटल को एज अ मेटल कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम में एंटर करते हैं, ठीक है, अब वो एंट्री एज अ प्रोब भी हो सकती है और एज अ ड्रग भी हो सकती है, तो फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, दिस इज ऑल्सो स्टडीड इन बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये कितनी ब्रॉड फील्ड है। नोमेनक्लेचर ऑफ बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है कि 1960s में इनऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री कहलाई जाती थी, 1980s में ये चेंज होके बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाने लगी, एंड देन 2000 में इसको मज़ीद मॉडिफाई करके बायोलॉजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाने लगा। तो इससे बात जाहिर होती है कि जितना जितना बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी होती गई है उतना ज़्यादा इसको वास्ट समझा गया है और इसके वास्ट एप्लीकेशन सामने आई हैं। ठीक है, वास्ट स्टडीज़ सामने आई हैं, एंड दैट्स वाई इसकी प्रोग्रेसिव मॉडिफिकेशन होती रही है इसके नोमेनक्लेचर में। ओके, हमारे मतलब की बात, व्हाट वी विल स्टडी इन दिस कोर्स। नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, मोस्टली मेटल्स। ठीक है, मैंने पहले कहा कि हम ज़्यादातर मेटल के बारे में पढ़ेंगे। इन अ ह्यूमन बॉडी एंड देयर फंक्शंस, interactions of biomolecules with metal ions, metalloenzymes and metalloproteins of various transition elements। ये सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, हम अदर देन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की भी मेटालोप्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे एंड मेटालोएंजाइम्स को। मेटाबॉलिज्म ऑफ मेटल आयंस, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, storage in the within the biological system. The role of metal ions in biological processes like unequal ion distribution, electron transfer, activation of small molecules. Complex physiological effects of metal ions, dysfunctions in metal ion homeostasis, toxic metal ions and medicinal applications. Applications of metal complexes in medicine, the field which is known as metallotherapy and chelatotherapy.